Assalamu alaikum, dear students. I am Professor Alina Naeem from Department of Zoology, Superior College, Wazirabad, and here I am with you for the first lecture of Wildlife of Pakistan. So welcome to the lecture. In this lecture, we are going to discuss about the wildlife, general introduction to wildlife, about wildlife biology, and the wildlife species existing in Pakistan, and the general overview of the whole course. So what comes in your mind when you hear about wildlife? A panda, a pride of lions, or a herd of elephants? That's all true. But wildlife is more than these big iconic animals we are familiar to. So what actually wildlife is? According to dictionary, we can say the native fauna and sometimes the flora of a particular region is termed as wildlife. By fauna we mean animals and by flora we mean plants. While wildlife biology is the study of all animals and their behavior along with the roles they play in their natural habitats, either big or small, how they interact with each other, how they interact with their environment, and how they interact with humans. While traditionally, wildlife refers to all the undomesticated animal species out there, including all the organisms that live and grow in a wild area without being introduced by humans. Wildlife can be found in all kinds of ecosystems, for example, in forests, in rainforests, in deserts, in grasslands, grassy areas, or in plains, and in many other areas. All kinds of ecosystems have distinct form of wildlife. For example, the picture in the background shows a brown bear that is found almost in all the northern mountains of Pakistan. Let's talk about the wildlife of Pakistan. Pakistan has been blessed with an incredible biodiversity, including a number of endemic wildlife species, while some of these species are facing several threats. So, what are endemic wildlife species? Endemic wildlife species are the species which are unique to a particular geographical area. For example, there are many endemic species which are present in Pakistan. Among them is the Balochistan dormouse, which is a part of rodent family and it is a unique and endemic species to Pakistan with an incredible biodiversity. The diverse fauna and flora of Pakistan range from different habitats, from sea levels to high elevated mountain areas. Coming to the general overview of the whole course. Now we will have a look on the course contents of wildlife of Pakistan. So first of all, we are going to discuss about the existing wildlife of Pakistan, the number and type of different species present in different regions of Pakistan, in different habitats, in different provinces, in different areas. Their identification, either they are amphibians, reptiles, birds, or mammals. Their distribution, where they are distributed, the habitat, the exact geographical location. Present status according to the International Union for the Conservation of Nature, either they are least concern, threatened, endangered, critically endangered, vulnerable, or extinct. The philosophy and significance of wildlife conservation, including the conservation efforts taken for the protection of wildlife after realizing its possibility of extinction. Major threats to wildlife biodiversity. Different species experience different threats to their survival. Actions taken or proposed for its protection and different rules and regulations formed in Pakistan for the conservation of wildlife in different provinces at different levels. Biodiversity and sustainability of life. Biodiversity is essential for the sustainable development and human beings. The protected area system, the designated land area for the protection of different biological diversity, including national parks, sanctuaries,
and game reserves, the wetlands of Pakistan, and at the end we will discuss about the national and international agencies working for the conservation and management of wildlife across the country. So we are done with the general overview of the course. So let's start our first topic, which is existing wildlife of Pakistan. So we will cover the existing wildlife of Pakistan in 4 categories. First category is the mountainous ranges. इस कैटेगरी में हम बात करेंगे उस तमाम वाइल्ड लाइफ की जो भी पाकिस्तान के माउंटेनियस रेंजेस में प्रेजेंट होती है। माउंटेनियस रेंजेस में कौन कौन सी रेंजेस आ जाती हैं हमारे पास? हिंदुकुश, हिमालय, कराकोरम, सुलेमान एंड कीर्थर माउंटेन्स, उसके अलावा हिमालयन फुट हिल्स, पोटोहार रीजन। इन तमाम एरियाज में, इन तमाम माउंटेनियस रेंजेस में जो भी वाइल्ड लाइफ प्रेजेंट है वो सारी हम डिस्कस करेंगे इस कैटेगरी में। नेक्स्ट कैटेगरी इज इंडस फ्लड प्लेन्स। वास्ट इंडस फ्लड प्लेन्स की जो वाइल्ड लाइफ है, डाइवर्स वाइल्ड लाइफ, वो हम इस कैटेगरी में स्टडी करेंगे। एंड द थर्ड कैटेगरी इज डेजर्ट्स। थल, थर एंड चोलिस्तान डेजर्ट्स ऑफ पाकिस्तान की वाइल्ड लाइफ, वहाँ पे जो भी वेराइटी वाइल्ड लाइफ की अवेलेबल है, फ्लोरा एंड फाना की, वो सारी हम स्टडी करेंगे इस कैटेगरी में। एंड द फोर्थ कैटेगरी इज वाइल्ड लाइफ ऑफ डिफरेंट प्रोविंसेस ऑफ पाकिस्तान। फाइन, इस कैटेगरी में हम पाकिस्तान के तमाम प्रोविंसेस की वाइल्ड लाइफ डिफरेंट स्पीशीज़ को स्टडी करेंगे। फॉर एग्जांपल पंजाब की करेंगे, पंजाब की, सिंध की, बलूचिस्तान की, गिलगित बल्तिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा, तमाम वाइल्ड लाइफ जो है वो हम स्टडी करेंगे इन 4 कैटेगरीज में। सो लेट्स स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन ऑफ पाकिस्तान। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल हैव अ लुक ऑन द मैप ऑफ पाकिस्तान। अगर हम पाकिस्तान के मैप पे देखें तो हमें सबसे पहले हम देखेंगे कि कौन सी बाउंड्रीज जो हैं वो किन कंट्रीज़ के साथ पाकिस्तान की कौन सी बाउंड्रीज हैं। ठीक है, सबसे पहले अगर हम देखें तो नॉर्थ साइड पे पाकिस्तान के चाइना प्रेजेंट है और नॉर्थ वेस्ट पे पाकिस्तान की बाउंड्री अफगानिस्तान के साथ है। ठीक है, उसके बाद वेस्ट पे ईरान प्रेजेंट है और साउथ ईस्ट में जम्मू एंड कश्मीर प्रेजेंट है। अगर हम इंडिया की बात करें तो वो साउथ ईस्ट में प्रेजेंट है और साउथ में पाकिस्तान के अरेबियन सी प्रेजेंट है। अगर हम पाकिस्तान के एरिया की बात करें तो 8,03,940 स्क्वायर किलोमीटर्स एरिया है पाकिस्तान का। क्लाइमेट की अगर हम बात करें तो वैसे तो मोस्टली टेम्परेट क्लाइमेट है, मुतदिल आबो हवा। लेकिन अगर हम डेजर्ट एरिया की बात करें जैसे थर, थल एंड चोलिस्तान और 3 डेजर्ट्स ऑफ पाकिस्तान, तो वहाँ पे क्लाइमेट जो है वो मोस्टली हॉट और ड्राई रहता है। और अगर हम बात करें नॉर्दर्न एरियाज़ की तो आर्कटिक क्लाइमेट। अगर हम टेरेन की बात करें, टोपोग्राफी के फिजिकल फीचर्स, तो हम कह सकते हैं कि पाकिस्तान इज़ अ ब्लेंड ऑफ लैंडस्केप्स, वेरिंग फ्रॉम प्लेन्स टू डेजर्ट्स टू फॉरेस्ट टू प्लेट्यूज। यहाँ पे फ्लैट इंडस प्लेन्स भी प्रेजेंट हैं, माउंटेन्स भी प्रेजेंट हैं, प्लेट्यूज भी प्रेजेंट हैं और कोस्टल एरियाज भी प्रेजेंट हैं अरेबियन सी के पास। WWF Pakistan is the organization working for wildlife in Pakistan. They have made many efforts to document the status of wildlife, and the correct status of many species is known, while information for most of them. Let's have a look on figures. Flora and fauna in world with comparison to Pakistan. Okay, if we talk about the plants, Pakistan has almost 5,000 wild plant species. If we talk about the mammals, Pakistan has 10 orders having 188 species of mammals, among which 63 are rodents, 39 are carnivores, 38 are bats, 25 are hoofed animals, 11 are insectivorous and 9 aquatic animals, 3 primates and 1 Pholidota. Okay, if we talk about birds, 666 migratory and resident bird species are 174 species of reptiles including lizards, snakes, turtles, tortoises, crocodile and gavial, 16 species of amphibians, 525 species of fishes, of which 400 are marine and 125 are freshwater, and 20,000 species of insects and 700 marine invertebrates. अब हम बात करते हैं अपनी फर्स्ट कैटेगरी की, दी माउंटेनियस एरियाज। ठीक है, तो सबसे पहले हम इस कैटेगरी को डिस्कस करेंगे कि इस एरिया में, यानी कि दी माउंटेनियस एरियाज में, पाकिस्तान के माउंटेनियस एरियाज में कौन सी जो है वो वाइल्ड लाइफ पाई जाती है। ठीक है,
तो माउंटेनियस एरियाज़ में अभी जो हम जिन रेंजेस की बात करेंगे वो हैं हिमालयन, काराकोरम और हिंदू कुश रेंजेस, ठीक है। दे आर रिच इन फ्लोरा एंड फाना। वहाँ बहुत ज़्यादा वेराइटी, वाइल्ड लाइफ की वेराइटी प्रेजेंट है। उसकी वजह क्या है? पहली बात तो दे प्रोवाइड एन एक्सीलेंट हैबिटाट, कि वहाँ पे अल्पाइन ग्रेजिंग लैंड्स है यानी कि ग्रास लैंड्स, और इसके अलावा सब अल्पाइन स्क्रब यानी कि अल्पाइन जोन, जो ट्री लाइन से नीचे नीचे का जोन होता है उसे हम अल्पाइन जोन कहते हैं, वो वहाँ पे लोकेटेड है। और टेम्परेट फॉरेस्ट हैं जो कि वाइल्ड लाइफ की सर्वाइवल के लिए, उनके थ्राइव करने के लिए जो है वो एक्सीलेंट एनवायरनमेंट प्रोवाइड करते हैं, हैबिटाट प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। एक तो इस हैबिटाट की वजह से, और दूसरी बात ये कि जो ह्यूमंस हैं उनका इंटरवेंशन इस एरिया में बहुत ज़्यादा कम है, क्योंकि जो माउंटेनियस एरियाज़ हैं वो लेस अप्रोचेबल होते हैं, जिसकी वजह से ह्यूमन इंटरवेंशन रिड्यूस होने की वजह से जो है वो वाइल्ड लाइफ स्पीशीज़ जो हैं उनका हैबिटाट सिक्योर रहता है, और जिसकी वजह से ग्रेट वेराइटी ऑफ वाइल्ड लाइफ स्पीशीज़ जो हैं वो इन एरियाज़ में थ्राइव करती प्रेजेंट हैं। और अगर हम इस पिक्चर में देखें तो ये है केटू की पिक्चर है, माउंट गॉडविन ऑस्टिन की, जो कि काराकोरम रेंज पे प्रेजेंट है। तो इसे हम देख सकते हैं, स्नो कवर्ड माउंटेन इन द नॉर्दर्न एरियाज ऑफ पाकिस्तान। जैसे कि हम माउंटेनियस रेंजेस की बात कर रहे हैं, तो ये देखने के लिए कि जो कौन सी माउंटेनियस रेंज है वो पाकिस्तान के में कहाँ प्रेजेंट है, तो उसके लिए ये मैप जो है वो आपको हेल्प कर सकता है। जैसे इसका नीचे लेजेंड देख सकते हैं आप, जिसमें कलर्ड सर्कल्स के साथ जो है वो काराकोरम रेंज, हिमालयन रेंज, हिंदू कुश रेंज और सुलेमान रेंज शो की गई है, और मैप पे वही कलर्स जो हैं वो दिखाए गए हैं, ठीक है। तो इससे हमें पता चल जाता है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं फर्दर माउंटेनियस एरियाज़ के में, कि यहाँ पे इन तीनों रेंजेस में, माउंटेनियस रेंजेस में हिमालयन, हिंदू कुश और काराकोरम में कौन सी वाइल्ड लाइफ प्रेजेंट है, ठीक है। यहाँ पे प्रेजेंट है स्नो लेपर्ड, ब्लैक और ब्राउन बियर्स, ऑटर, वुल्फ, लिंक्स, हिमालयन आइबेक्स, मार्खोर, बारल, मार्कोपोलस, शीप, शैपू, मस्क डियर, मैमथ्स, ट्रैगोपैन एंड मनाल फीजेंट्स, ठीक है। तो इनकी पिक्चर्स जो है वो आपको आगे अवेलेबल होंगी, और आप वो देखें, और उनके नेम्स के साथ आपको जो है वो याद होनी चाहिए कि कौन सा एनिमल्स है, कौन सा एनिमल है, उसकी पिक्चर के साथ ही आपको फ़ौरन से नेम याद आ जाना चाहिए उसका, ठीक है। एटलीस्ट आपको कॉमन नेम जो है वो याद होना चाहिए। Pictures are available for snow leopard, black bear, brown bear, otter, wolf, lynx, Himalayan ibex, markhor, bharal, Marco Polo sheep, shapu, musk deer, फिर हम बात करते हैं जी माउंटेनियस एरियाज़ में जो है वो डिफरेंट जगहों पे, यानी कि हायर एलिवेशंस पे कौन से एनिमल्स और बर्ड्स प्रेजेंट हैं, और लोअर एलिवेशंस पे। अगर हायर एलिवेशंस की बात करें तो माउंटेनियस रेंजेस में हायर एलिवेशंस पे स्नो पैट्रिज और स्नो कॉक जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं। उसके अलावा अगर हम लोअर एलिवेशंस की बात करें तो रेसिस मंकी, कॉमन लंगूर, रेड फॉक्स, ब्लैक बियर, कॉमन लेपर्ड, वेराइटी ऑफ कैट्स, कुछ एरिया में मस्क डियर, घोराल, different species of flying squirrels, chakor partridge, and different pheasants, including kaklas, kalige, and cheer. These are present at the lower elevations. ठीक है। और फिर अगर हम बात करें कि इंडेंजर्ड स्पीशीज़ इनमें से कुछ हैं इन एरियाज़ में, माउंटेनियस एरियाज़ में प्रेजेंट हैं इन्हीं तीनों रेंजेस में, तो वो हैं स्नो लेपर्ड, मस्क डियर और मार्कोपोलो शीप और ब्राउन बियर। अब इंडेंजर्ड स्पीशीज़ क्या है और इनको कैसे जो है वो कैटेगराइज किया जाता है, ये हम इंशाल्लाह जो है वो एक अलग लेक्चर में पढ़ेंगे। इसके अलावा अब हम बात करते हैं कि इन्हीं माउंटेनियस एरियाज़ में कुछ ऐसे जो है वो कुछ ऐसी स्पीशीज़ हैं जो जिनके नंबर जो हैं वो ड्रास्टिकली रिड्यूस हो चुके हैं, और या तो वो वल्नरेबल हैं या इंडेंजर्ड हैं, और उनमें आते हैं जी तिब्बतन वाइल्ड एस, ब्लू शीप, चीयर फीजेंट एंड वेस्टर्न हॉर्न्ड ट्रैगोपैन, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे हिमालयन फुट हिल्स और पोटोहार रीजन की, ठीक है। अगर हम हिमालयन फुट हिल्स और पोटोहार रीजन की बात करें तो उसमें कौन कौन से जो है वो रेंजेस आ जाते हैं, साल्ट रेंजेस और काला चट्टा रेंजेस, ठीक है। और वहाँ का जो है वो हैबिटाट कैसा है जी, वहाँ पे स्क्रब फॉरेस्ट्स हैं, और जिसकी वजह से जो है वो भी जो है वो बहुत ज़्यादा कम रह चुके हैं। स्कैंटी ग्रोथ यानी कि कम ग्रोथ है, बहुत ज़्यादा जगहों पे जो है उसकी बहुत कम ग्रोथ है। और मीडियम साइज एनिमल जो है जैसे पंजाब उरियाल है, बार्किंग डियर है, गोराल, चिंकारा पैट्रिजेस हैं,
सीसी एंड चकोर पैट्रिजेस हैं, ये जो मीडियम साइज़ के स्पीशीज़ हैं, वाइल्ड लाइफ स्पीशीज़, बर्ड्स स्पेशली जो है वो वहाँ पे प्रेजेंट है। और इसके अलावा सॉन्ग बर्ड फाना जो है वो इन एरिया में पाया जाता है। फिर हम बात करते हैं जी सुलेमान और कीथर रेंजेस की, ठीक है। सुलेमान माउंटेन्स जो हैं वो साउदर्न एक्सटेंशन है हिंदू कश रेंज की, और वो कीथर माउंटेन्स के साथ मिलके सुलेमान एंड कीथर रेंज बनाते हैं, ठीक है। अगर हम इनकी बात करें तो ये एक यूनिक हैबिटाट प्रोवाइड करते हैं यूनिक एनिमल स्पीशीज़ को, जिसमें आ जाती हैं जी स्ट्रेट हॉर्न मार्खोर, चिंकारा एंड उरियाल। जबकि इनमें से जो है सिंध आइबेक्स, उरियाल, चिंकारा और कॉमन लेपर्ड ये कॉमनली जो है वो कीर्थर रेंजेस में ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। उसके अलावा अगर हम बात करें स्ट्रेट हॉर्न मार्खोर की, तो वो भी जो है उसका नंबर एक्सट्रीमली डिक्लाइन कर चुका है और वो ऑलमोस्ट एक्सटिंक्ट है पाकिस्तान की सेटल्ड बाउंड्रीज में, ठीक है। बस कुछ नंबर्स जो हैं वो उसके प्रेजेंट हैं अब। और उसके अलावा चकोर, सीसी और ग्रे पैट्रिज जो हैं वो बर्ड्स की स्पीशीज़ हैं जो कॉमन है इन रेंजेस में। माउंटेनियस रेंजेस की जो है वो कैटेगरी कंप्लीट होने के बाद हम बात करते हैं इंडस फ्लड प्लेन्स की, ठीक है। यहाँ इस सेकंड कैटेगरी है कि इंडस फ्लड प्लेन्स की जो है वो वाइल्ड लाइफ किस तरह की होती है। इंडस फ्लड प्लेन्स की अगर हम बात करें तो ये फर्टाइल लैंड्स हैं, ठीक है। कि यहाँ पे जो है वो नेचुरल वेजिटेशन को क्लियर करके जो है वो क्रॉप ग्रोइंग पर्पसेस यानी कि एग्रीकल्चर पर्पसेस के लिए यूज़ किया गया है फ्लड प्लेन्स को, ठीक है। उसकी वजह से क्या है कि ग्रेट ह्यूमन इंटरवेंशन की वजह से बहुत ज़्यादा जो है वो वाइल्ड लाइफ इफ़ेक्ट हुई है, और बहुत ज़्यादा जो है वो डाइवर्सिटी भी इफ़ेक्ट हुई है, और अब बहुत कम वैरायटी जो है वो पाई जाती है इन एरियाज़ में, जिसमें आ जाते हैं जैकल, मंगूज, जंगल कैट, सिविट कैट, स्केली एंटीटर, डेजर्ट कैट और वाइल्ड हेयर, ठीक है। हॉक डियर जो है वो रिवराइन ट्रैक्ट्स में प्रेजेंट होता है, और उसके अलावा जो क्रॉप रेजिड्यूज वगैरह बच जाते हैं फ्लड प्लेन्स पे क्रॉप हार्वेस्टिंग के बाद, और उसके अलावा इधर जो वो वाइल्ड ग्रोथ जो भी उधर ग्रो कर जाते हैं हर्ब्स वगैरह, उसकी वजह से जो है वो कुछ ब्लैक और ग्रे पैट्रिजेस की जो पॉपुलेशन हैं वो वहाँ पे जो है वो सर्वाइव कर जाती हैं। That was all for today. Thank you so much. Inshallah, in the next lecture, we will discuss the wildlife of deserts and provinces of Pakistan. Thank you.